Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are tackling a really interesting and tricky problem from Lead Code, minimum domino rotations for equal row. At first glance, it might seem a bit confusing, but don't worry, by the end of this video, you will have clear and complete intuitive understanding of the approach along with a fully functional and most optimized C++ code. We will walk through the problem statement, analyze edge cases, and then build a solution from step by step. So, whether you are preparing for interviews or just sharpening your DSA skills, you are in the right place. So, let's dive in by understanding the question. So, question is mainly about dominoes rotation. Here we are given two arrays. Now, those who don't know, domino is like a stone or a piece of rock or something like that. And here there are two values or dots given. For example, this. So upper part is saying value 2 and lower part is saying value 4 because corresponding value of dots are there. So we are given an array like this where we are given the number of dots or values on each domino. So here you can see 2, 1, 2, 4, 2, 2. So it is in top side 2, 1, 2, 4, 2, 2 and similarly on the bottom side 5, 2, 6, 2, 3, 2. Now our goal is that we can apply an operation in which we can rotate the value of any domino from up to down or swap the values of both the faces upside and downside. And we have to our eventual goal is to make all the values in the upper row or in the upper row or below row equal by applying minimum number of operations. Now initially this problem might seem confusing because I tried for almost 8 to 10 minutes for this problem, but the main crux of this problem is hidden in the constraints that are given. As you can see, values on dominoes or faces, they will be always between value of 1 to 6. So unless and until I read this constraint, the approach was clear cut in my mind. If we are given only 6 values and total dominoes we are given are 2 raised to 14 and you are given only 6 values, can't we make a brute force? For example, I am given this much of dominoes, 5 dominoes I am given, and similarly I have to rotate the values. So initially, let us take, we will run a loop through 1 to 6. First of all, I will try to make 1 on every domino. 1, 1, 1, if it is possible. If it is not possible, then we will be returning -1 or we won't be considering that particular iteration. Then we will be moving to 2. I will be trying to keep 2 on every upper side of the domino. Similarly, we will be also checking for keeping 2 on the downside of the domino. मतलब कि हमें बेसिकली करना ये है कि 1 से 6 की वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 6 चेक करेंगे क्या हमारा जो गिवन डेटा है उसमें हम सभी रो ऊपर की रो या नीचे की रो को 1 के बराबर कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आंसर ले लेंगे आंसर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे फिर हम देखेंगे 2 के लिए अगर 2 भी सेट हो रहा है कि ऊपर वाली रो में या नीचे वाली रो में तो उसके भी करस्पॉन्डिंग आंसर ले लेंगे अगर और सभी ऐसे आंसर्स का मिनिमम ले लेंगे और क्वेश्चन इज सॉल्व सो दिस इज द बेसिक इंट्यूशन अभी टेस्ट केस लेके ही देखते हैं ना जस्ट अ सेकेंड लेट अस कॉपी दिस ओके ओके this is the test case so values are 2 1 4 2 1 2 4 2 2 and the below value is 5 2 6 2 3 2 now as I told you we will be going through each and every value of 1 to 6 so let us take for 1 क्या इस पर्टिकुलर डोमिनो को मैं वन के मतलब ऊपर की रो या नीचे की रो को 1 कर सकता हूं नहीं बिकॉज यहाँ पे मेरा 1 वैल्यू ही नहीं है either on upper side or lower side. So 1 is not the chance. 1 को लेके तो हम नहीं कर सकते. Okay, then we will go for 2. क्या इसकी
ऊपर वाली रो को मैं 2 कर सकता हूँ, हाँ ऊपर से पहले से ही 2 है, कोई बात नहीं। तो हम दो काउंट ले लेंगे। काउंट वन ये है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस required to make upper row equal to any variable from 1 to 6, and CNT2 for making value or single value or operations required to make single value equal to the next row. So CNT1 और CNT2 equal to 0 है अभी। ओके ये 2 ऊपर से पहले है तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ 2 नहीं है पर इसके नीचे 2 है, तो अगर हम इस डोमिनो को स्वैप करेंगे तो हम यहाँ पे 2 वैल्यू ला सकते हैं। ओके तो काउंट 1 की वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली 2 ऊपर है, जरूरत नहीं है, यहाँ 2 नहीं है ऊपर के फेस पे, तो हम नीचे के फेस पे 2 है तो हम वैल्यू स्वैप कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली स्वैप कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली यहाँ पे दोनों ऊपर 2 ही है, तो काउंट 1 वेरिएबल की वैल्यू है 2। अभी हम चेक करेंगे कि हम नीचे की सभी रो को 2 करने के लिए हमें कितने ऑपरेशंस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे 2 नहीं है पर ऊपर का वेरिएबल 2 है, तो हम डेफिनेटली स्वैप कर सकते हैं। काउंट 2 के वेरिएबल की वैल्यू है अभी 1। 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है पर करस्पॉन्डिंग अपोजिट फेस पे 2 है, स्वैप कर सकते हैं। काउंट 2 वेरिएबल की 2 हो जाएगी 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 नहीं है पर इसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट फेस पे 2 है। काउंट CNT2 वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 3 और सिमिलरली यहाँ पे 2 है। तो ये इधर पूरी ऊपर की रो को 2 बनाने के लिए हमें ऑपरेशंस चाहिए होंगे 2 और पूरी नीचे की रो को 2 बनाने के लिए हमें ऑपरेशंस चाहिए होंगे 3, पर हमें बोला है मिनिमम ऑपरेशंस, तो इस वाली वैल्यू का आंसर होगा 2, क्योंकि हम मिनिमम 2 ऑपरेशंस अप्लाई करके पूरी ऊपर की रो को हम 1 और 2 कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस वर्थ ऑफ 2। सिमिलरली 3 के लिए चेक करेंगे, 4 के लिए चेक करेंगे, 5 के लिए चेक करेंगे, 6 के लिए चेक करेंगे। सभी के करस्पॉन्डिंग CNT1 CNT2 काउंट करेंगे और उन दोनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी that will be your फाइनल आंसर। ठीक है, अभी एक -1 वाला केस भी देख लेते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी। 3 5 1 2 3 3 6 3 3 4। ओके दिस इज द वैल्यू गिवन टू अस। सपोज हमें बनाना है 1, ये पहला केस में ही नहीं बनेगा क्योंकि दोनों के फेसिस की वैल्यू 1 नहीं चलेगा। ओके बनाना है 2, यही फेल हो जाएगा, 2 भी नहीं चलेगा। बनाना है 3, चलो यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ हो सकता है पर यहाँ 3 का कोई वैल्यू नहीं है ऊपर या नीचे, 3 भी नहीं चलेगा। लेट अस चेक फॉर 4, यहीं से कैंसिल हो जाएगा, 4 भी नहीं चलेगा। लेट अस चेक फॉर 5, यहाँ से नीचे कैंसिल। लेट अस चेक फॉर 6, नो। सो 1 to 6 की जितनी भी वैल्यू है 1 और 6 के बीच की, none of them is satisfying the given array, so all our answer will be -1. This was the main logic, or let us say that it is really problem, but मैं भी 8-10 मिनट तक मैं इसमें ट्राई किया, सब अप्लाई किया, मैप बाइनरी सर्च तक पहुंच गया था मैं, जो कि इसमें किसी भी एंगल से नहीं लगता क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट्स नहीं देखे थे। अगर कंस्ट्रेंट्स मुझे पता है 1 से बीच की वैल्यू आने वाली है, तो why not to check each and every face of domino by keeping that value whether we are possible or not to make a complete row of upper side or lower side equal to the value between 1 to 6, and we will be taking minimum of all the corresponding operations and we can check answer easily। CNT1 CNT2 करना है, सबका मिनिमम लेना है, जो the most minimum answer होगा that will be our final answer। So this was the main, what will be the time complexity? Yeah, time complexity है O of 6 star n, क्योंकि हम 1 to 6 की बार लूप चलेंगे और अंदर we will be checking to 0 to n-1, so overall time complexity is O of 6 star n, which is almost O of n। so yes, that's it। let us understand the code काफी इजी है, इसलिए मैंने पूरा अपने आप से नहीं किया है, मतलब वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है, काफी इजी कोड है समझने में। हियर वेरिएबल्स ले लिए, आंसर int max, और एज आई टोल्ड यू 1 से 6 का लूप चलाएंगे। CNT1 और CNT2 की जगह लिया है ये है हमारा CNT1, ये हमारा CNT2। अभी लूप चलाया है 0 से 1 से।
अगर ऊपर की वैल्यू भी नम के बराबर नहीं है और नीचे की वैल्यू भी वन के बराबर उस नंबर के बराबर नम के बराबर नहीं है, तो देर आर नो चांसेस दैट वी विल बी एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर एरे इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नम फ्रॉम 1 to 6. सो ये तो हम बाहर से निकल जाएंगे, ब्रेक लगा देंगे। एक ये वैलिड वेरिएबल ले लेंगे फॉल्स, वो मैं बताता हूँ आपको क्यों। अगर हम बना सकते हैं, मतलब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो बाहर निकल गए। अब ये केस है जिसमें ऊपर का या दोनों का वैल्यू आइदर ऑफ देम विल बी इक्वल टू नम। अगर ऊपर की वैल्यू नम नहीं है तो इसका मतलब हम विल बी मेकिंग अपर रो इक्वल टू दैट वैल्यू, मेकिंग अपर रो इक्वल टू दैट वैल्यू, तो हम प्लस करेंगे ए प्लस प्लस। अगर ऊपर की वैल्यू सेम है नीचे की नहीं है तो हम ट्राई करेंगे कि नीचे का बनाने के लिए देन वी विल बी डूइंग बी प्लस प्लस। अब बताता हूं ये मैंने वैलिड क्यों लिखा था ऊपर। इफ दिस वैलिड, if the combination is valid then and then we'll be taking minimum of a and b with a and s, क्योंकि अगर वैलिड नहीं है तो पहले से a और जीरो है, a और b जीरो है, और मिनिमम लेंगे तो हमेशा एवरी टाइम आंसर विल बी इक्वल टू जीरो ओनली, जो कि आंसर नहीं है। क्योंकि अगर कभी भी आंसर नहीं आएगा देन विल बी रिटर्निंग आंसर इक्वल टू -1। सो दिस वैलिड वेरिएबल और वैलिड बुलियन वेरिएबल इज फॉर दैट। ओके, ये लूप खत्म हो जाएगा। बाद में अगर स्टिल आंसर हमारा इंट मैक्स के बराबर ही आ रहा है, मतलब ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट हुई ही नहीं है, इन दैट केस विल बी रिटर्निंग -1। अदरवाइज विल बी रिटर्निंग आंसर विच इज मिनिमम ऑफ एवरी इटरेशंस काउंट 1 and cnt 2 variable. So I hope this question is easy and सीधा भाई ग्रीडी अप्रोच ही मारना है तो एज सच कोई फाड़ू प्रॉब्लम नहीं है। बट the main thing is to see constraints in this case, because I made mistakes, so I will make sure that you guys don't. And yeah, this was it from my side for this problem. Please give this problem a try. We'll be meeting in the next video very soon. Till then, keep learning, keep hard working. Thank you very much.